Morning, all of you. Today, I am going to explain about basic proportionality theorem. Otherwise, it is also called Thales theorem. Basic proportionality theorem is known as Thales theorem. According to this theorem, when a line is drawn, listen carefully, when a line means here straight line is drawn parallel to one side of a triangle. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in the same ratio. But according to the statements of NCERT book or other books, we can easily say that about if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. But what I say you, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in the same ratio. Both statements are same. So we want to draw a triangle. Here suppose ABC is a triangle and DE parallel to BC. Children, carefully observe on board and think what Ganga sir says. It is must for you. Now DE, here DE parallel BC. It means DE is, if a line, here DE is a line which is parallel to one side, so one side of this triangle is BC, so DE parallel BC. Here DE divides AB and AC internally, and here triangle ABC, and here DE line parallel to BC. Here DE line parallel to BC, but here DE divides other two sides externally, not internally. Carefully, children, it must listen and also look on board sincerely. ये बहुत आवश्यक है कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या सोचते हो, यह बहुत जरूरी है. तो चिल्ड्रन यहां पर देखो, ट्रायंगल एबीसी हम बनाए, उसमें क्या कर रहा है, इफ अ लाइन, एक लाइन लेना है ना, वन लाइन, तो हम लोग लिए डीई लाइन जो बीसी के पैरेलल है, लेकिन ये डीई जो लाइन लिए हैं वो तो एबी और एसी को इंटरनल डिवाइड करता है ना. स्टेटमेंट में कहीं नहीं है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अब वो लाइन जो तुम ड्रॉ करते हो वो इंटरनल डिवाइड करता है अदर टू साइड्स को या एक्सटर्नल डिवाइड करता है अदर टू साइड्स को, ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं है. इसका मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट in two cases. First case is here DE divides AB and AC internally, but here DE and DE parallel to BC, but which divides other two sides AB and AC externally. So when DE parallel BC, then the part of DE parallel BC, then DE divides AB at point D, and also DE divides AC at point E. Carefully look here. DE divides AB at point D, and DE also AC divides at point E. So two line segments of AB का टू लाइन सेगमेंट हम बोल रहे हैं, एक हो गया आपका AD और दूसरा क्या हो गया DB. आप इसका रेशियो निकालोगे, कंपेयरिंग करना है तो AD by DB, एक ये रेशियो आता है.
और DE ऑल्सो डिवाइड्स AC एट पॉइंट D एट पॉइंट E। सो इसका भी दो टुकड़ा हो जाएगा, दो लाइन सेगमेंट AE एंड EC, फिर इसको AE को डिवाइड करेंगे AC, तो ये आ गया एक रेशियो, बट दोनों रेशियो सेम होगा। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर देन द एक्सप्रेशन इज नोन एज व्हाट? प्रोपोर्शनल। सो इट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। It is also in short form called BPT. BPT, that means basic proportionality theorem, and also it is called Thales theorem. So here AD by DB is equal to AE by EC. When DE divides internally AB and AC, then here AD by DB is equal to AE by EC. It is clear? Now triangle ABC, but DE parallel to BC, but DE divides AB externally at point D, and also DE divides AC externally at point E. So DE parallel BC, then here we can write here what? AD by DB, AD by DB and also AE by EC। यानी दोनों ही केस में सोचना है हम लोगों को, इंटरनल डिवीजन भी और क्या सोचना है, एक्सटर्नल डिवीजन भी। अब चिल्ड्रंस, now here AD by DB and AE by EC, here we want to add 1 in both sides। here AD by DB is equal to AE by EC। क्या चाह रहे हैं बच्चे हम देखते हैं कि दोनों साइड्स में 1 ऐड करके क्या रिजल्ट आ रहा है। तो AD by DB प्लस 1 is equal to AE by EC plus 1। Now here taking LCM of DB and also 1, so here LCM is equal to DB। Now here DB is divisor and this DB is dividend। So DB is divided by DB, then quotient is equal to 1, 1 is multiplied by AD, so result will be AD a plus। Now here dividend is equal to DB and divisor 1, so quotient is DB, a DB is multiplied by 1, then result will be DB। So here also similar, the LCM of EC and 1 is here EC, and now AE a plus EC। Children, look carefully on board what I speak and what you think, what you look on board, it must correlate to each other। Now AD plus DB, here AD plus DB we can write easily AB, so result will be here AB by DB and also AE by AE plus EC, that means AC, so here AC by EC, it is also result। AD देखो चिल्ड्रंस, एक रिजल्ट आ गया तुमको AD by DB एंड हेयर AE by EC, एक ये रिजल्ट दिमाग में रखना है। दूसरा ये भी रिजल्ट आ गया कि AB by DB इजकल टू क्या होगा, AC by EC, तो AB by DB इजकल टू AC by EC, ये भी रिजल्ट होगा। क्या दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम सर। नाउ हियर सिंस AD by DB is equal to AE by EC. Now here AD by DB and is equal to AE by EC. If here reciprocal of these two ratio, रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू रेशियो, आप चाहते हो उसका रेसिप्रोकल ले ले, तो बताओ तो चिल्ड्रन क्या होगा रेसिप्रोकल AD by DB और AE by EC का? तो आप कहोगे सर AD by DB का रेसिप्रोकल क्या होगा, DB by AD, और इसका क्या होगा EC by AE। अब चिल्ड्रन यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट में आ जाएगा, आप सोच सकते हो DB by AD प्लस 1 इक्वल टू AE EC बाय AE प्लस 1 कर देंगे, ये आपको रिजल्ट में आ जाएगा AB बाय प्लस 1 करने पर AB बाय AD
एंड रिजल्ट में आ जाएगा AC बाई AE। इसका मतलब ये भी रिजल्ट में आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। वो रेशियो क्या सब हो सकता है? तो रेशियो होगा पहला, आप ब्रेन में रखोगे AD बाई DB, दूसरा होगा AE बाई EC, ये ब्रेन में रखे अकॉर्डिंग टू नीड। नाउ ये भी दिमाग में रखेंगे हम लोग AB बाई DB, AB बाई DB, AC बाई EC, ये ब्रेन में रखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ये भी ब्रेन में रखेंगे। फाइनली AB बाई AD और AC बाई AE, ये आ गया आपको रिजल्ट्स। तो चिल्ड्रंस क्या हुआ, फिर से एक बार सुनो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स other two sides of the triangle in the same ratio. Otherwise, if you want to remember the statements of the NCERT book, then easily you can say if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Now here AD by DB is equal to AE by EC। सिमिलरली ये जो प्रोसेस आप देखे हो, इस प्रोसेस के हेल्प से यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि AB by DB is equal to, यहाँ भी लिख सकते हैं AC by EC, और भी लिख सकते हैं AB by DB, AD by AB by DB और AC बाय EC, ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये रेशियो आ गया, दूसरा ये रेशियो आ रहा है, यहाँ भी रेशियो आ रहा है ना। तो आप अकॉर्डिंग टू नीड जो जैसा जहाँ ज़रूरत हो उसके हिसाब से उनको उपयोग करना है। तो यहाँ भी ये रेशियो है, दूसरा ये रेशियो है, दोनों रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, सो इट इज नॉन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चिल्ड्रंस, आप मुझे लगता है कि जो आप जब मेरा वीडियो देखोगे, आप जब सुनोगे, अभी तो हम बोल रहे हैं आप प्रेजेंट नहीं हो लेकिन होगे प्रेजेंट, तो उस समय ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में आपको ये ब्रेन में सेट कर जाएगा कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। नाउ वी वांट टू solve some problems on the basis of Thales theorem, otherwise basic probability theorem। Here हम प्रॉब्लम कुछ, चिल्ड्रंस, here in this figure it is the problem triangle ABC, in triangle ABC DE, चिल्ड्रन देखो ठीक से बोर्ड पर, DE parallel BC and also AD is 3 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना, AD 3 सेंटीमीटर, DB देखो ठीक से कितना है 2 सेंटीमीटर and AE 6 सेंटीमीटर, but we have to find EC which is equal to X। हमको X का वैल्यू फाइंड करना है। इजली आप इस फिगर को देखो तो मन में क्या आया आपको, ये ऐसा आया होगा, सर आप तो DE BC के पैरेलल ड्रॉ कर लिए, यानी ट्रायंगल में क्या किए हम लोग, एक लाइन ड्रॉ किए हैं ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल। कहोगे सर ये थेल्स थ्योरम तो कह रहा है सर कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कहोगे सर ये तो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, अदरवाइज तेरे मेमोरी में अगर है थेल्स थ्योरम देन इजीली वी कैन से दैट सर इट इज द थेल्स थ्योरम। दैट मीन्स मेरा रिसोर्स जा रहा है कहाँ, थेल्स थ्योरम की ओर। आप यूज कर सकते हो इसको, आप लिखोगे DE गिवन में DE पैरेलल BC, आप इजीली लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थेल्स, यहाँ लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। रिसोर्स क्या है आपका, तो हम लोग कमेंट कर दिए थेल्स थ्योरम से क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। चिल्ड्रन अब यहाँ पर तुम चेक करो क्या गिवन है, AD कितना है देखो तो बच्चे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बाय DB कितना है 2 सेंटीमीटर एंड
AE कितना है देखो तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड EC फाइंड करना है ना, फाइंड EC, इट इज इक्वल टू x, सो हियर वी राइट हियर x. नाउ CM कैंसिल, यूनिट तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट का है क्वांटिटी. अब जो बच रहा है तुमको कितना 3/2, लेकिन ये यूनिट तो रह जाएगा ना, ये 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये तो रह जाएगा, ये कहाँ कैंसिल हुआ, बाय 6 सेंटीमीटर बाय x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन रिजल्ट विल बी व्हाट, 3 into x, that means 3x is equal to 2 into 6 centimeter, that means 2 into 6 centimeter. So result will be 3x is equal to 12 centimeter. So x is equal to 12 centimeter by 3. Result will be what? 604 centimeter. इस प्रकार से चिल्ड्रन हम लोग x फाइंड कर लिए. ये तो यहाँ पर DE आपको था AB और AC साइड को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, तो आप यूज कर लिए. स्टेल्स के थ्योरम में, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम में कहीं नहीं है कि लाइन टू साइड्स को इंटरनल डिवाइड करता है या एक्सटर्नल. कभी कभी आप क्वेश्चन में डाल देगा तुमको एक्सटर्नल डिवीजन का, आप सोचोगे कि यार AB का टुकड़ा जो होगा पीस, वो कहीं AB से लार्जर होगा, आपको लगेगा क्वेश्चन रॉन्ग है. अगर हम लोग AB को डिवाइड करते मतलब दो टुकड़ा बना AD और DB, दे दे तुमको DB जो है AB से लार्जर है, फट से ब्रेन लगाना पड़ेगा कि मेरा जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल वन साइड के, वो एक्सटर्नल डिवीजन है न कि इंटरनल डिवीजन है. इंटरनल डिवीजन होगा तो AD कभी AB से लार्जर हो ही नहीं सकता है. तो वहां पर क्वेश्चन को रॉन्ग करके निकल जाइएगा, बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन था एक्सटर्नल डिवीजन, ये तो छूट गया मेरा 2 नंबर का, बेवजह गलती हो गया. तो मस्ट है जो इसका भी यूज करना. आप यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स, ये आपका ट्रेंगल है PQR. यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो QR के पैरेलल ये ड्रॉ कर लिए ST. अब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, जो कहां पर मीट किया है T पॉइंट पर, और आपको गिवन है ये PQ मान लो आपको 6 सेंटीमीटर है, और PS आपको गिवन है यहां, ये PS की बात कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल डिवीजन किया है PQ और PR को, तो वो आपका है सपोज करो 18 सेंटीमीटर. ये यहाँ तक बात कर रहे हैं हम, PS की बात कर रहे हैं, और आपका PQ कितना है 6 सेंटीमीटर. और फिर ये आपको जा रहा है कितना 5 सेंटीमीटर PR, और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या PT. ये x सपोज करो PT फाइंड करना है, तो हमको तो यूज करना पड़ेगा. आपको हम बोले हैं कि ये पैरेलल है, ये तो आपको रफली करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ये कंप्लीट लाइन में आ जाएगा. अब सोचो चिल्ड्रेंस, ये दोनों तो पैरेलल है, आप लिखोगे ST पैरेलल QR, बट सीधा थेल्स थ्योरम का यूज कर लेंगे. Here we will use basic proportionality theorem. According to this theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides of the triangle externally in the same ratio. एकदम ब्रेन में रखना पड़ेगा. आप इसको ब्रेन में बिल्कुल आपके ब्रेन से स्केप करना ही नहीं चाहिए. नाउ आप लिख सकते हो PS बाई, हम कहते कि आप ऐसा भी रेशियो यूज कर सकते हो PS बाई PQ फ्रॉम थेल्स थ्योरम. ना इतना लिख पाते हो तो इतना से काम चलेगा, फ्रॉम BPT बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये चलेगा. नाउ क्या हो जाएगा आपका PQ बाय PS इज इक्वल टू PR बाय PT. चिल्ड्रेन PQ गिवन है, आपको दिखाई दे रहा होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंड PS ऑल्सो 18 सेंटीमीटर, and PR also 5 centimeter. Now we have to find PT, so here we write PT. Now CM cancel, and also 6 1 ja 6 6 3 ja, so result will be here 1/3 is equal to 5 cm by PT. Therefore result will be PT is equal to
15 सेंटीमीटर। सो PT इजकल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर PT तुम सोच रहे हो और तुम कर दिए इसका एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अगर तुम कर दिए इसका इंटरनल डिवीजन तो आएगा ऐसे, तो ब्रेन में आएगा T। अरे PR का पार्ट जो T होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग, छोड़ो इसको, क्वेश्चन गलत है। अब क्या करोगे? छोड़ के चले आओगे। जबकि इस क्वेश्चन में आपको जो लाइन है वो PQ और PR को डिवाइड किया है एक्सटर्नली, ना कि इंटरनली, और उस केस में आपका PT लार्जर हो जाएगा। यानी PR का ही पार्ट है PT जो लार्जर है। क्यों? तो वो PR और PQ को एक्सटर्नल डिवाइड किया है, न कि इंटरनल। इंटरनल करेगा तो कभी भी PT लार्जर नहीं होगा। किससे? PR से। और आपको ये नॉलेज अगर होगा तो आप सोचोगे चलो इंटरनल डिवीजन में गड़बड़ी हो रहा है तो चलते हैं किसकी ओर? एक्सटर्नल डिवीजन की ओर। आपका क्वेश्चन राइट निकलेगा, आप निकाल लोगे, होए ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा ब्रेन में नहीं आएगा। तो चिल्ड्रंस, आप इसको यूज करोगे। हम इसको अब रोकते हैं। अगेन आई मीट यू आफ्टर दिस वीडियो।